Amen. Thank you very much giving me an opportunity, inviting me to share the word of God. और मैं खुदा का और आप लोगों का शुक्र करता हूँ कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया और खुदा का कलाम सुनाने के लिए मौका दिया। I feel joy to share the word. और मुझे खुशी होती है खुदा के कलाम सुनाने की। And I feel joy to pray for others. और मुझे खुशी और आनंद मिलता है जब मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूँ। Because I feel God has anointed me to preach the word and pray for the people. क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं लोगों के लिए दुआ कर सकूँ। And His Spirit is upon me so I can speak His will over your life. और खुदा की रूह मेरे में है इसीलिए मैं खुदा की रूह के जरिए कलाम दे सकता हूँ। And He has given me the grace so I can break the yokes from your life. और खुदा ने मेरे पर फजल किया है ताकि मैं दुआ जब करूँ तो सारे जुए टूट जाए। So it is my prayer, those who accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, let they experience the full victory, full success, full freedom that is in the Lord. और जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है मैं दुआ करता हूँ मांगता हूँ कि उनके जिंदगी में एक सक्सेस विक्ट्री और ब्रेक थ्रू आ जाए। And it is my desire that our life should be joyful every time. और मेरा यही ख्वाहिश है कि हम सबका जिंदगी आनंद पूर्वक रहे। So when we fix our eyes on God जब हम अपनी आंखें अपनी दृष्टि परमेश्वर पे लगाते हैं and start to hear His voice in our spirit, और जब उसकी आवाज को हमारे दिल में हम जब सुनते हैं we will be joyful 24/7 in the name of Jesus. और हमेशा हम सदा सर्वदा आनंद में रहेंगे जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे। Sometimes you have to speak yourself, I will be joyful in the name of Jesus because this is the will of God. और हमें अपने आप को तैयार करना है और कहना है कि ये मेरे मन तू खुदा में आनंदित होगा। Because joy of the Lord is my strength. क्योंकि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। When we are joyful, it is very easy to pray, it is very easy to sing, it is very easy to invite others to the prayer. और जब हम खुशी और आनंद में रहते हैं तो हम दिल से स्तुति आराधना कर से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और खुदा की पाक मर्जी के लिए हम भाग सकते हैं। So every time you can encourage yourself, I am a child of God, I am highly favored by God. और हम अपने आप को हमेशा याद दिलाए कि परमेश्वर मैं अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का फेवर के मेरे पर है। I am a child of God, I am a born of God, His favor is always upon me. और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और उसका अनुग्रह मेरे पर है। And He will wipe out every tears, He will turn my sorrows into dancing. और वो मेरे सारे आंसुओं को मिटा देगा और मेरे दुख को खुशी में बदल He देगा। has crowned me with glory and honor. और उसने मेरे पर ग्लोरी और ऑनर का मुझे I will see the good days in the name of Jesus. और मैं आगे के दिनों में बहुत अच्छे दिनों को देखने वाला हूँ। Hallelujah. There is some secrets are there I want to reveal to you today. और कुछ ऐसे गुप्त बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Normally we give testimony when we receive the miracle. और हम बहुत बार जब हमारी जिंदगी में गवाहियां होती है तब हम चमत्कार होते हैं तब हम गवाहियां देते For हैं। example, you waited for a child blessing after 10 years. Doctor confirmed you are pregnant. You will be joyful. You are giving praises to God. और अगर किसी शख्स को 10 साल के बाद वेट करने के बाद एक खुशखबरी मिलती है फिर हम जाके सबको जाके खुशखबरी टेस्टिमनी सुनाते हैं। For example, you are waited from long time for a green card and immediately in your PO box card is there, you will be joyful. और हम देखते हैं अगर बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं ग्रीन कार्ड के लिए और हम अचानक से उसको देखते हैं तो हम बहुत खुशी और आनंदित होते हैं। There's nothing wrong because God has done those things. और ये परमेश्वर का काम है जो हमारे जिंदगी में होता है। And we give glory to God. और हम उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। Then you can ask, what is secret in that, pastor? और हम कहेंगे कि उसमें क्या गुप्त बातें हैं। The secret is before you receive green card, before you receive the child blessing, before you receive a breakthrough, you can praise God. You can see that miracle in your spiritual eyes. और हम देखते हैं हमारे ब्रेक थ्रू मिलने से पहले ही वो बातों को हम अपने आत्मिक आंखों में देख सकते हैं। ब्रेकथ्रू मिलने के बाद गवाही देना नाचना कूदना बहुत अच्छा है बट मिरेकल होने का पहले खुदा तूने एक काम किया है हालेलुया आई हैव रिसीव्ड द बेस्ट लाइफ पार्टनर आई हैव रिसीव्ड द बेस्ट हाउस यू आर गिवन इट बिकॉज़ आई आस्क्ड अकॉर्डिंग टू योर विल ओ गॉड और हम मिलने से पहले ही खुदावन को शुक्र करें कि खुदावन ने तूने मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर दिया अच्छा घर दिया है पहले ही शुक्र करें उसका सो what happens the speed of getting prayer answered will be more speed
और जवाब जल्दी आ जाएगा, लंबा इंतजार करने का जरूरत नहीं है. When you see miracle before it's happened through the eyes of faith, it will take place fast. और जब विश्वास की आंखों में हमारे मिराइकल को जब हम देखते हैं तो वो देरी कट जाती है और वो जल्द से हमारे जिंदगी में जाहिर होती है. So to have such kind of faith, और उस तरह का विश्वास होने के लिए we should grow in the word. और हमें परमेश्वर के वचन में और कलाम में बढ़ना है. We should have intimacy with the Father. और हमें उसके साथ एक गहरे रिश्ते में चलना है. And we must develop a lifestyle where we will hear the voice of God every time. और हमारा ऐसा रिश्ता बन जाना चाहिए कि हर समय पर हम उसकी आवाज को सुनते हैं. Hallelujah. Shall we pray? Father, I thank you for your word. और खुदावन हम शुक्र करते हैं आज आपके कलाम के I am लिए. ready to receive your word, oh God. और हम तैयार हैं आपके कलाम को सुनने के I लिए. decided to delight in you because you are the source of all the blessings. और खुदावन हमेशा आप में आनंदित रहने के लिए मैंने सोच लिया है, ठान लिया है. And I thank you for your grace, your favor upon my life. इसलिए मैं शुक्र करता हूँ आपका अनुग्रह और फजल मेरी जिंदगी पे है. Especially I pray for those who are hearing my word, those who are hearing my voice. God, you open their spiritual eyes and understanding in the name of Jesus. और खुदावन जितनी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनके आत्मिक कानों को खोल दे और ताकि वो समझ जाए आपके वचन I को. pray, Lord, let our heart be a good ground where we will produce 100-fold fruits to you, O God. और खुदावन मेरा दिल ऐसा जगह बने जहाँ पर मैं फलवंत हो सकूं. I am what your word says that I am. और मैं हूँ वही जो आपका कलाम मेरे बारे में कहता So है. I agree with your word. और आपके कलाम के साथ मैं सहमत I होता am हूँ. a new creation in Christ और Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नया मखलूक I हूँ. am the temple of the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ. I am the Son of God. और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. Christ lives in me. और यीशु मसीह मेरे अंदर जीता The है. God has made me the head, not the tail. और प्रभु यीशु परमेश्वर ने मुझे सर बनाया है. I shall be the lender, never be the borrower in Jesus' name. और मैं हमेशा देने वाले बनूंगा और लेने वाला नहीं. I thank you, Lord, you made me healthy and wealthy in Christ Jesus. और खुदावन मैं शुक्र करता हूँ तो आपने मुझे अच्छा हेल्थ में और वेल्थ में ब्लेस किया. And I pray for all these precious people as they're ready to receive your word. God, you release your blessings. और जितने परमेश्वर पिता आज आपके कलाम सुनने के लिए तैयार है आपका आशीष और अभिषेक उनके ऊपर आ In जाए. Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम में. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So I will start with the same message which I preached last week. I'll continue with that. और पिछले हफ्ते मैंने जो सिखाया था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा. I know it was not very sweet message. It is not encouraging message, but it is the message from God. और मैं जानता हूँ कि वो बहुत एकदम अच्छा मतलब स्वीट Sweet. नहीं था. Hallelujah. जैसे आपका कान चाहता है वैसा वो मैसेज नहीं था. Hallelujah. Because it was little bit strict. और वो थोड़ा सख्ती से था कलाम. So I told you, as we are born again, हम खुदा से पैदा हुआ है. We have the Spirit of God in us. और हम जैसे खुदा से जन्मे हुए हैं तो खुदा की रूह हमारे अंदर निवास करती है. So how we will know the Roshan is born again? He has the Spirit of God. हम कैसे जानेंगे कि हम नए सिरे से जन्मे हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है. So if you go to a Pentecost church, they will say, if Roshan is speaking in tongue, Riba, Karaba, Shaka, Rianto, Roshanda, he has the Holy Spirit. और अगर कोई हम पेंटेकोस्ट चर्च में चले जाते हैं अगर अन्य भाषा से हम बात करते हैं तो वो कहेंगे हाँ हम रूह से भर गए हैं. Because they have a many scripture from the Acts of Apostle, they will make you feel that you are filled with the Holy Spirit. और उनके पास इतनी कलाम है कि ये वो आपको बता देंगे कि आप रूह से भर गए हो. But my Bible says, if you are lying, that means you are not filled with the Holy Spirit. पर मेरी बाइबल कहती है अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं. So what it means that how I will know that I am filled with the Holy Spirit when I fear God, when I speak truth. Hallelujah. That means I am filled with the Holy Spirit. हम कैसे जान पाएंगे कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं? जब हम झूठ नहीं बोलते हैं तब उससे पता चलता है कि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं. So before last week we studied how important our words are.
और पिछले हफ्तों में हमने सीखा कि किस तरह से हमारे शब्द कितने इम्पोर्टेंट हैं। So how we should be careful when we are speaking. और हमने बहुत सावधान में रहना है कि क्या बातें हमारे मुंह से निकलती है, Because we have to think and speak. क्योंकि हमें पहले सोचना है फिर हमें बात करना है। Because many people have some misunderstanding like this. They think when we are in the Zoom meeting, when we are singing 2-3 songs, when we hearing the word of God, when we interceding, that only God is with us. और हम में से कोई ऐसे भी समझते होंगे कि जब हम जूम मीटिंग में बैठते, दुआ में बैठते, उसी समय सिर्फ खुदा सुनता है। That is a lie. वो समय पर सिर्फ खुदा हमारे पास नहीं रहता है। 24/7 365 days एक born again व्यक्ति के साथ खुदा रहता है। That is the most important revelation that every born again believer must have. जब आप किचन में रहते हो तब भी खुदा आपके साथ रहता है, जब आप बाथरूम में रहते हो तब भी खुदा आपके साथ रहता है, जब आप फोन में रहते हो तब भी खुदा आपके साथ रहता है, जब आप दूसरों से बात करते हो तब भी खुदा आपके साथ में रहता है। It is not like a Old Testament theology when you go to Jerusalem that only you will have Jesus. और हम ऐसे समय पे नहीं है जहाँ पर पुरानी सोच थी कि जब हम परमेश्वर घर में जाते हैं तभी परमेश्वर की उपस्थिति रहती So है। some people think if I go to मंदिर में जाएगा खुदा मिलेगा करके वो लोग सोचते हैं, फिर मंदिर से बाहर आके अपना लाइफ जीते हैं। That is not the Christianity. That's not the born again life. Born again में खुदा आपके अंदर आके बस जाता है। He is 24/7. He is with you. और हम देखते हैं कि जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। Hallelujah. So every word that comes out of your mouth, it is a prayer. और हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं वो आपकी दुआ है। Maybe you are not close with in the name of Jesus, hallelujah, but every word is very important what you release from your mouth. इसीलिए हम जो कुछ हमारे मुंह से बोलते हैं हर एक शब्द को हम जांचें, क्योंकि वो भी हमारे लिए दुआ ही है। Because we saw, no need to open in Matthew chapter 12 verse number 36, but I tell you that man will give an account on the day of judgment for every careless word they have spoken. और मत्ती की किताब में 12 में लिखता है 12:36 में लिखता है कि हर एक बातों का हमें लेखा देना पड़ेगा। Why? Because you are very important person. क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। See, God is not saying you have to give account of your bank balance. God is saying you have to give account of every careless word that you have spoken. और खुदावन नहीं कहता है कि मैं आपका बैंक बैलेंस का हिसाब किताब लूंगा, पर हर एक शब्द जो आपके मुंह से आता है उसका मैं हिसाब किताब लूंगा। So verse number 37 says, by your words you will be justified and by your words you will be condemned. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके मुंह से आए शब्द को आप निर्दोष ठहराए जाएंगे और आपके मुंह से आए शब्द से आप दोषी ठहराए So, जाएंगे। hallelujah, I have some secrets for you. The first secret I gave you, before you receive some blessing, rejoice in the Lord, see them in your spiritual eyes, give yourself testimony. Hallelujah, mirror के सामने खड़ा रहो, हॉल में खड़ा रहो, ऐसे सोचो कि चर्च में खड़ा रहा है, जय मसीह की, hallelujah, whatever you expected, release the testimony. That's the one of the secret. The second secret, how to guard your lips before you speak, think twice. और जब हम देखते हैं कि जब पहला बात तो मैंने आपको बताया कि जब आपकी मिरेकल आपको कोई चाहिए है तो आपने पहले ही उसकी गवाही देनी चाहिए। आप गवाही मीन्स अपना आपके साथ गवाही देना चाहिए, नहीं तो अपना बीबी के साथ, बच्चों के साथ आप गवाही देना, नहीं तो अकेले में गवाही देना, नो प्रॉब्लम। बट आने के बाद सब लोग देखेंगे, मिलने के पहले अपने आप से गवाही देना, खुदा को शुक्र करना। खुदा को आप ऐसे भी बोल सकते, खुदा हालेलुया, हाथ में मिलने के बाद सब लोग शुक्र करते हैं, बट खुदा मुझे मालूम है आपने दिया है, आपको मैं शुक्र करता हूं। You can thank God before you receive. That's one of the secret. Second secret I want to tell, आप जो भी बात करेगा, जिससे भी बात करेगा, बात करने का पहला 2 बार आप सोच लेना, क्योंकि खुदा इसको सुनने वाला है। Hallelujah. So this is very important. You can practice this. This is the second secret. Third secret, try to, hallelujah, speak, pray according to the word of God. और तीसरी बात है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार दुआ करना सीखो। Sometime when you are alone, hallelujah, ऐसा अपना आप को स्कैन करना,
जो सोच मेरे मन में आता है, जो बात मेरे मुंह से निकलता है, जो चीज मैं देखता हूं, जो चीज मैं डिजायर करता हूं, ये सब कुछ खुदा के वचन के अनुसार है क्या नहीं है? Hallelujah. Because you are born again, you are washed by the blood of Jesus, you are precious son and the daughter of God. क्योंकि आप परमेश्वर उस कीमती लहू से साफ किए गए और उसके बच्चे हो, इसीलिए अपने आप को स्कैन करें कि आप क्या बोलते हो. Hallelujah. And the fourth secret, never desire. Hallelujah. जो मीठी मीठी बात करने वाले पास्टर के पीछे मत जाओ. Hallelujah. जो Hallelujah सही कलाम देता है, जो स्टिक पकड़ के Hallelujah सीधा सीधा बात करता है, उसके साथ अपना रिश्ता रखो, क्योंकि एटलीस्ट Hallelujah खुदा का करेक्शन हमारे जीवन में आएगा. We can see heaven. Praise the Lord. Hallelujah. So it's very important, hallelujah, to guard your tongue. इसीलिए बहुत जरूरी है हम सावधान करें कि क्या तरह की बातें हमारे मुंह से निकलती हैं. Because we saw last week in Proverbs chapter 6 verse number 17. और नीति वचन 6:17 में देखा कि lying tongue is abomination to God. हम देखते हैं जो जबान से झूठ बात निकलती है वो परमेश्वर के खिलाफ है. So we learn, hallelujah, why God hates lie. That is in John 8:44. When someone is lying, he is saying, devil is his father. और जो कोई झूठ बोलता है वो अपने आप को इस तरह से दर्शाता है कि शैतान का उसका पिता है. झूठ का बाप जो शैतान है वो उसका पिता है. So whoever lying, they are not born of God. इसीलिए जो कोई झूठ बोलता है वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है. The one who born of God, he cannot lie. और जो परमेश्वर से जन्म लेता है वो झूठ बोल नहीं सकता. So you want to know, you want to check, are you really born of God? Then check your words. अगर आप सचमुच में जानना चाहते हो कि आप नए सिरे से जन्मे हो तो आप जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हो वो जांच लो. So today we are going to continue why we should be careful with our words. और आज फिर हम सीखेंगे कि क्यों हम हमारे शब्दों को ध्यान दे कि हम क्या बोलते हैं. Because we saw in James chapter 3 verse number 2, that's the last week we saw, for we all stumble in many things. If anyone who does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. और हम याकूब की किताब 3:2 में देखते हैं, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. Amen. Through your words, hallelujah, you can be perfect before God. और अपने शब्दों के कारण आप परमेश्वर के सामने सिद्ध ठहर सकते हो. So we concluded last week, hallelujah, the tongue is a fire. और हमने पिछली बार सीखा था कि जो हमारी जबान है वो आग है. Hallelujah. Therefore we are praying for nations to release the fire of God. We are praying against the kingdom of darkness, against sickness, because our tongue is the fire. हम इसीलिए हमारे देशों और राष्ट्रों के ऊपर दुआ करते हैं, क्योंकि हमारी जबान एक आग है, उसमें से जब निकलती है वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. Then we saw if you don't use tongue properly, hallelujah, then that tongue can defile us. अगर हम हमारे जबान को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही जबान हमको खराब कर देगी. And it can release the fire of the hell against us. और नरक की आग हमारे ऊपर डाल देगी. So it is very important to have control, the Holy Spirit control over our tongue. इसीलिए बहुत जरूरी है कि पाक रूह का लगाम हमारे जबान पर रहे. So today is more continuation why we should be careful of our tongue. और आगे हम सीखेंगे कि क्यों हमें सावधान रहना है हमारे शब्दों के कारण. So let me turn our Bible to Revelation chapter 21 verse number 8. हम जो रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के 21:8 में हम पढ़ेंगे. Okay, as you are going there, I want to give some background. हम लोगों को ऐसे सिखाया गया है, हालेलुया, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम रास्तबाज हो जाते हैं, परफेक्टली राइट. हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम स्वर्ग जाते हैं, वो भी 50-50 राइट. बट इधर हम लोगों को लिखा है, हालेलुया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के बाद हम कैसा जीना चाहिए. मीन्स आवर लाइफ विल बी एविडेंस आर वी आर गोइंग टू हेवन और नॉट.
और हमारा जिंदगी यहाँ पर बताएगी कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। And many people are teaching आप कैसे भी जियो, not because of your righteousness you are going to heaven. और बहुत लोग इस तरह से सिखाते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे आपके रास्तबाजी की वजह से नहीं, पर यीशु मसीह के रास्तबाजी की वजह से। 100% that is true. हम लोग स्वर्ग हमारे प्रयत्न से, हमारे सामर्थ्य से नहीं जाएंगे। हमारे में अच्छा कुछ भी नहीं था, जो भी पाप था उसको हम निकाल दिया है। यीशु मसीह ने अपना रास्तबाजी, अपना पवित्रता हम लोगों को दिया है। Through his righteousness, through his holiness, we are going to enter the heaven. और उसके ही रास्तबाजी के वजह से, उसके पवित्रता जो उसने हमें दिया है, उसके कारण हम स्वर्ग में जाएंगे। But this word giving us some warning. और ये कलाम है जो हमें चेतावनी देती है। Let us read together. हम साथ में पढ़ेंगे। But the cowardly, जो डरपुक है, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerer, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजा, ये सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। That Jesus gave his precious blood, so we must escape this lake of fire. और प्रभु मसीह यीशु ने अपना कीमती लहू इसीलिए दिया ताकि इस आग से हम बच पाएं। That Jesus Christ died on that cross, he has taken all this sin upon him. और यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा ताकि ये सारे जो बातें हैं वो हमारे जिंदगी से निकल जाए। Therefore it is very important, we should not be cowardly. हम यीशु डरपुक नहीं होना चाहिए। We should not be unbelieving. We should not do anything abominable. You should not be a murderer, sexually immoral, sorcerer, idolater and liars. और हम देखते हैं ये सारी बातें परमेश्वर पसंद नहीं करता है और ये वो बातों को हमारे जिंदगी में नहीं चाहता है कि हम डरपोक बने, अविश्वास बने, घिनौने काम करें, हत्या करें, व्यभिचार करें, टोना करें या मूर्ति पूजा करें और इवन झूठ बोलना भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर एक इंसान बोलता है कि मैं यीशु के वजह से रास्तबाज हूं, praise God, I agree with that. But अगर वो झूठ बोल रहा है, so big question comes, वो कौन सा रास्तबाज है? If anyone is saying that I am righteous because of Jesus, I totally agree with that. But if he's lying, if you do idol worship, if you have a wrong relationship, then what type of life he has? अगर हम कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं पर ये सारी बुरी बातें हमारे जिंदगी में है तो हम कैसे रास्तबाज ठहर सकते हैं? So therefore, hallelujah, God has made us righteous, so we should live a holy and pure life, the life that pleasing to him. और जब परमेश्वर ने हमें रास्तबाज ठहराया है तो हम जरूर है कि पवित्रता में और परमेश्वर को पसंद आने वाली जिंदगी ही जिए। So क्यों हम झूठ नहीं बोल सकते हैं? Because we saw God hates the liars. हम देखते हैं कि झूठ इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि परमेश्वर विरुद्ध करता है, नफरत करता है झूठ बोलने वालों से। The lying tongue is an abomination to God. और जो झूठा जबान है वो परमेश्वर के खिलाफ है। And we saw the all liars will be thrown into the lake of fire. और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। Today there is a biggest deception is going on in the world. और हम देखते हैं एक बड़ी धोखे की बात इस पूरी दुनिया में हो रही है। The preacher knows the people are lying. और जब प्रचारक खुद जानते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं, Still they are not correcting them. और फिर भी उसके बावजूद भी उनको वो करेक्ट नहीं करते हैं, उनको सही नहीं करते। And they are giving them a झूठा तसल्ली वो लोगों को देता है कि चिंता मत करो, वरी मत करो, सब कुछ अच्छा होएगा। God is loving God, God is caring God. Yes, it is true, but same God is saying, if you are lying, you are not belongs to God. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के खादिम है वो खाली तसल्ली देते रहते हैं कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, पर उनको सिखाते नहीं है कि परमेश्वर ये बातों से भी नफरत करता है।
they want only मीठी मीठी बात, जो बात से आप खुश होएगा, जो बात आप सुनने के लिए तरस रहा है, ऐसी बात ही सिर्फ वो लोग बोलेंगे. Praise God for them. I am not against, but I am telling you, hallelujah, my Bible says, after born again, hallelujah, if you live in sin, you will die in hell. और मेरी बाइबल इस तरह से कहती है कि जो नए सिरे से जन्म लेने के बावजूद भी पाप में जीते हैं, उनका अंत नरक में होगा. But बहुत दुख की बात है, that is written in Revelation chapter 20 verse number 10 part B. I will read in English. And they will be tormented day and night forever and ever. Yeah, Revelation 20 verse number 10, last part. उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की इस झील में, जिसमें वो पशु और झूठ भविष्यवक्ता भी होंगे, डाल दिए जाएंगे और वे दिन रात युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे. So we saw झूठ बोलने वाला वो खुदा का बेटा नहीं हो सकता है. झूठ बोलने वाला वो शैतान का बेटा है. इसलिए शैतान को और जो झूठ बोला उसको साथ में एक ही जगह पर डाला जाता है. That is called the place of lake of fire. और उधर लिखा है और वे रात और दिन युगान युग पीड़ित में तड़पते रहेंगे. They were cast into the lake of fire. उन्हें आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा. You can see, hallelujah, who all there. और हम देखते हैं वहां पर कौन कौन से तरह के लोग रहेंगे. 21:8 में हम लोग पढ़ा कि there will be cowardly, there will be unbelieving, abominable, murderer, sexually immoral, sorcerer, idolaters, all kind of liars. और हम 21:8 में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य रेवलेशन के 21:8 में कि वहां पर किस तरह के लोग पाए जाएंगे, जो आग में, जो डरपोक है, जो अविश्वासी है, जो घिनौने काम करता है, जो हत्यारा है, व्यभिचारी है, टोना करता है, मूर्ति पूजा करता है और झूठ बोलता है, वो सारे उस आग में रहेंगे. And all these people thrown into the place where they will also be thrown into that place. और वहां पर शैतान को भी उस आग में डाला जाएगा. And saddest thing, they will be tormented day and night forever and ever. और वो रात और दिन युगान युग पीढ़ी में तड़पते रहेंगे. So झूठ बोलना अभी बहुत आसान हो जाता है. झूठ बोल से कुछ लाभ हो सकता है, but eternally you will end up in the fire where you will be tormented day and night. और हम देखते हैं कि झूठ बोलना कितनी आसान हो जाता है. हम सोचते हैं इससे हमारा बहुत फायदा हो जाएगा, पर हम देखते हैं अंत में ये क्या है कि हमें युगान युग उस आग में पड़े रहना पड़ेगा. खुशी की बात यह है, मैथ्यू 25:41 में लिखा है, जो आग जो खुदा ने रेडी किया था, लेक ऑफ फायर, दिस इज नॉट फॉर अस. और हम देखते हैं जो यीशु मसीह कहता है कि जो नरक बनाया था, जो आग का जगह बनाया था, वो मनुष्य के लिए नहीं बनाया था. इफ यू रीड मैथ्यू 25:41, उधर लिखा है, जीसस बोलता है कि जोस ऑन द लेफ्ट साइड, डिपार्ट फ्रॉम मी यू कर्स्ड into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. 25:41. No, Matthew. उसने स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास. 25:41. तब वह भाई और बालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी. This verse reveals God's intention why he has prepared the eternal fire. और यहाँ पर परमेश्वर का मकसद पता चलता है कि आग और ये जो नरक है वो किसके लिए बनाया गया It's था. not prepared for you and me. और ये आग, ये नरक, ये हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनाया. But
but people are filled with the spirit of lie, जब लोग झूठ की आत्मा में भर जाते हैं, people are filled with the sin, और वो पाप में भर जाते हैं, people are filled with the curses, और वो सारे श्राप से जब भर जाते हैं, because of their disobedient, और क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है, their walk is leading them to eternal destruction. और उनका चाल चलन है जो उन्होंने ठान लिया है वो उनको नरक के रास्ते में लेकर चलता है। मैं बहुत खुश हूं, खुदावन किसको भी आग में नहीं डालता है। Hallelujah. The God is not interested to throw anyone in the fire except devil and his angels. But man make a choice by lying, by disobeying, by walking against God. Then he ends the place which he has chosen now. और हम देखते हैं कि मनुष्य खुद का चुनाव करते हैं वो झूठ बोलने से, और जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता वो कामों को करके उसकी आज्ञा न मानने से वो अपने रास्ता चुन लेते हैं नरक में जाने के लिए। यस, खुदा दया का खुदा है, दया खुदा रहम का खुदा है, इसलिए वो आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर मरा ताकि हम ये सारे पाप छोड़कर, झूठ भी छोड़कर एक पवित्र पाक जिंदगी जी सके। हालेलुया। जीने के लिए नहीं होता है इसलिए उसने अपना कलम दिया है, जीने के लिए नहीं होता है, कलम समझ में नहीं आता इसलिए अपना पाक रूह को दिया है। God has given his word, his Holy Spirit, so there is no excuse to a believer, so he cannot live the ways of God. हम देखते हैं एक बिलीवर कोई बहाने नहीं दे सकता है कि वो परमेश्वर के रास्ते में ना चले, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं अपने वचन को दिया है, कि बाइबल को दिया है, उसी तरह से अपना पवित्र आत्मा दिया है, तो इनके सारे एक पवित्र जिंदगी वो जी सकते हैं। So we saw God hates the liars. God, the lying lips is abomination to God. और परमेश्वर झूठ बोलने वालों से नफरत करता है। For example, मैं काम में जाता है, काम का एग्जाम्पल, काम का जगह पर पूरा झूठ बोलता है और पूरा दिन झूठ है, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल है, और शाम में 9 बजे आके खुदावन तू कितना पवित्र है, पाक खुदा करके मैं कितना जोर से भी बोलेगा, खुदा वो दुआ नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं पूरा दिन झूठ में गुजरा है। खुदा बोलेगा आई एम एबॉमिनेशन, ये दुआ मुझे पसंद नहीं है। So it is very important as a born again believer, you must live in the fear, in the love, in the freedom, in the holiness of God. और जैसे हम परमेश्वर से नए सिरे से जन्मे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पवित्रता में परमेश्वर को पसंद आने वाली जिंदगी और आज्ञा पालन में जिंदगी बिताएं। So I want to take you to the Acts of Apostle chapter 5 verse number 3. Many people say अभी खुदा बदल गया है, बहुत लोग ऐसा टीच करता, आगे के दिनों में वो लोगों का नाम भी मैं आपको दूंगा। हालेलुया। ऐसा टीच करता है कि जो भी दंड, मेरा पाप का दंड खुदा ने यीशु मसीह को दिया है, परफेक्टली राइट, मैं कैसे भी जीने से, हालेलुया, खुदा को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुदा ने उसका रास्तबाज मुझे दिया है करके झूठ सिखाता है। So, hallelujah, I want to show you from Acts chapter 5 verse number 3, अगर वो सच है फिर अनानिया और सफरिया क्यों मर गया? The verse number 3 says, Acts chapter 5 verse number 3, the Peter said, Ananias, why have Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? और हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 में पढ़ेंगे। पतरस ने कहा, हे हनानिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और बस इधर हम देखता है एक आदमी झूठ बोलता है, वो अपना सामर्थ्य से नहीं बोलता है, उसके अंदर झूठ की आत्मा है, झूठ का बाप शैतान है। सो हम देखता है अभी खुदा के सामने, खुदा का ये अपोस्तल के सामने, रसूल के सामने अनानियास झूठ बोल रहा है, उसका नतीजा क्या हो रहा है? वर्स नंबर 5, ये बातें सुनते ही हनानिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। अभी रहम का खुदा किधर गया? अभी जो लोग प्रचार करता है
खुदा रहम का खुदा है। खुदा ने जो भी दंड यीशु को दिया है, कैसे भी मैं जीने से खुदा मुझे माफ करेगा, मुझे स्वर्ग में लेगा, ऐसा झूठ बोलने वालों से आप केयरफुल रहना। इसलिए मैं ये टीचिंग खुदावन हम लोगों को दे रहा है। आपका लाइफ आपको हेवन में लेके जाएगा। सो हैव प्योर होली लाइफ बिकॉज ऑफ दैट जीसस डाइड फॉर अस। और हमें ऐसी पाक पवित्र जिंदगी जीना है क्योंकि इसके लिए ही यीशु उस क्रूस पर हमारे लिए मरा। So I will take 2-3 scriptures, then we will go to prayer. Hallelujah. Psalms chapter 5 verse number 6. भजन संगीता 5 में 6 पढ़ेंगे। उधर लिखा है, खुदावन you destroy those who tell lies. लिखता है कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। Hallelujah. First we saw in Proverbs, the lying lips is abomination to God. और हमने पहले नीति वचन में पढ़ा कि जो झूठ बोलता है वो झूठा जबान परमेश्वर के खिलाफ है। And we saw in Revelation all liars are cast into the lake of fire. और हमने प्रकाशित वाक्य पर पढ़ा कि जितने झूठ बोलते हैं वो अनंत काल की आग में जाएंगे। And Acts 5:3 we saw the Ananiah lied because the devil entered in him. और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में हम पढ़े कि हनन्याह ने झूठ बोला क्योंकि शैतान की रूह उसके अंदर आ गई थी। And now we saw that God will destroy all those who tell lies. और यहाँ पर भजन संगीता में लिखता है 5:6 में कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं उनको नष्ट करेगा। And Psalms 52 verse number 4. और भजन संगीता 52:4 में कहता है, You love to hurt people with your words, you liars. 52:4 हे छल जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। But God will strike you down once for all. He will pull you from your home and uproot you from the land of the living. निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। And again in Proverbs chapter 19 verse number 9, a false witness will not go unpunished and a liar will be destroyed. हम प्रेरितों के काम नहीं, Proverbs 19:9 नीति वचन 19:9 में हम पढ़ेंगे कि झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरेगा और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। So all this scripture shows one thing, God hates the liar. और हम देखते हैं ये सारे जो कलाम हैं ये यही दर्शाते हैं कि परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। अगर हमारा कलीसिया में नहीं तो हमारा फैमिली में ऐसा एक झूठा आदमी है, अगर मैं उसके ऊपर नबूवत करेगा, तू डरो मत, खुदावन तेरे साथ है, तुझे भलाई होएगा, अच्छा होएगा, I think we should suspect what type of prophecies are those. और अगर कोई झूठ बोलता है और उसके ऊपर बड़े बड़े नबूवत होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि किस तरह का नबूवत है। Because God hates the liar, it is good to tell him, you repent, come to God, God will restore your life. इसके बदले हमें उसे ये कहना है कि तू तौबा कर तेरे गलत बातों से और अपनी जिंदगी फिर से यीशु मसीह को दे दे। So it is very important, before we come God, we should tremble before God. और जब हम परमेश्वर के करीब उसके सामने आते हैं तो हमने उसका खौफ हमारे दिल में रहना We चाहिए। should revere God. और हमने उसको इज्जत देना है। ऐसा दिन आना चाहिए कि जब लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देगा तब वो लोग खुदा को डरना चाहिए, अगर मेरे में पाप रहेगा खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसा दिन जल्दी आना चाहिए। Because people just give the prayer points and they make us to pray day and night and they live their own selfish lustful life। ऐसा लोगों को blessing कभी भी नहीं आएगा। That's what my Bible says. Amen. Praise God. So let us spend some time in prayer. Hallelujah. Asking God, खुदा मेरे अंदर ऐसा झूठ है क्या?
क्योंकि अगर मेरे अंदर झूठ रहेगा आप मुझे पसंद नहीं करेगा। ताकि 1000 पास्टर लोग बोल सकता है कि गॉड लव्स यू, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, खुदा का बरकत आपके ऊपर है, खुदा का बरकत आपके घर के अंदर है, बट मेरा बाइबल बताता है कि जो झूठ बोलता है उसके ऊपर खुदा का कर्स है, डिस्ट्रक्शन विल कम अपॉन हिम एंड ही विल बी थ्रोन इनटू द फायर। So, hallelujah, it may not be an encouraging message today, but I have to speak the truth because this is from the word of God. और हम देखते हैं ये बहुत खुशहाल की कलाम नहीं हो सकता है, पर ये एक वार्निंग है हमारे लिए जो परमेश्वर हमें देता है। Because I don't want to deceive the people when I know the heart of God. और मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ जब मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का दिल कैसा है। So it is very important, once you are repented, once you are born again, live a holy, pure life, which is the gift from God. और जब आप नए सिरे से जन्म लेते हो तो अपनी जिंदगी एक पवित्र जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, ये साल्वेशन, उसको संभाल के रखें। Hallelujah. Again the good news, if you repent truly, Lord, I don't want to live a sinful life. I don't want to live an abomination life. I want to live a holy and pure life. Daddy, please help me. The Lord will put His Spirit. He will make you to live a holy life. और फिर भी परमेश्वर इतना दया का परमेश्वर है, जब हम वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के सामने झुक देते हैं और कह देते हैं कि प्रभु यीशु मुझको क्षमा कर, मुझे ये सारी बातों से तू आजाद कर, तो हमारा खुदा हमें छुटकारा देता है और हमें क्षमा करता है। If I say I am a born again believer, there should be separation from darkness to light. और जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, तो अंधेरे में और उजाले में फर्क होना चाहिए। I should be live a separated life, a holy life, a Nazarene life, which is God will be well pleased with that life. और मैं ऐसी तरह की जिंदगी जियो कि अलग तरह की जिंदगी, ना दुनिया के जैसे, जो ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर को पसंद आती है। आइए हम खुदा को शुक्र करेंगे। खुदा बाप, आज का वचन के लिए मैं आपको शुक्र करता हूं। आपने हम सब लोगों के ऊपर दया किया, इसलिए अपना कमी को आपने दिखाया। खुदा, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, हम कबूल करते हैं। वी कन्फेस, ओ गॉड, गिव अस ग्रेस टू ओवरकम एवरीथिंग व्हिच इज नॉट प्लीजिंग टू यू, ओ गॉड। खुदा, ऐसा एक बर्तन हम लोगों को बनाना, हम लोग पाक, हालेलुया, हमेशा पाक, होली, प्योर बर्तन बनकर तेरा जलाल में भरकर तेरा सेवा करने वाले हम सब लोग बने करके मैं दुआ करता हूं। खुदा, खास करके अराइज इन क्राइस्ट एक ग्रुप के लिए मैं शुक्र करता हूं। जितना भी लोग एवरीडे जुड़ रहा है, दुआ कर रहा है, खुदा बाप, हम सब लोगों को हालेलुया आप पाक करना, आपका पाक कलाम से खुदा हम लोगों को पवित्र रखना। खुदा, हमारे जबान से जो वचन आता है, Lord, help us to release carefully those words, oh God. We thank you once again. We give the glory and honor to you, oh God, in Jesus' mighty name. Amen.